آج کا بچہ جو اچھا ہوگا تو کل کا سیاستدان اچھا ہوگا، کل کا پولیس مین اچھا ہوگا، کل کا فوجی اچھا ہوگا۔ ہم نے آج اپنے ٹک ٹاکرز اور باقی لوگوں کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں کیسے لوگ پیدا ہوں، خالد بن ولید۔ بات وہی ہے، میں نے ایک بہت اچھی بات سنی تھی کہ جس قوم میں گانے بجانے والوں اور ناچ گانے والوں کو فوقیت دی جائے نا، اس قوم سے خالد بن ولید اور عمر بن خطاب جیسے لوگ پیدا نہیں بالکل ابھی ایک بائکر والا ہی یاد آ گیا۔ غالباً میں اس کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف کہیں جا رہا تھا یا اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہا تھا، تو بائکر والا بول رہا تھا کہ یہ دیکھو سارا کچرا کیا ہوا ہے۔ اس کے بولنے کا انداز میں آپ کو بتاؤں، ہیلمٹ اس نے اپنے آگے رکھا ہوا ہے، منہ میں اس کے گٹکا ہے، وہ گٹکے کو یوں ہی بائک چلاتے چلاتے بھلے وہ پیچھے کسی کے بھی منہ پہ جائے، وہ وہیں پہ اس کی پچکاری مار کے مجھے بتا رہا ہے کہ یار یہ ملک کا یہ حال ہوا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ کچرا ہے، یہ روڈ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ اس روڈ کو خراب کرنے میں سب سے اہم کردار اس نے ادا کر دیا، کہہ رہا ہے یہ روڈ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں اب کہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ اب یہ بات آ گئی نا کہ ہمارے جو الفاظ ہیں نا وہ ہمارے ایکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ ایک بڑے شور مچایا ہوا ہم نے بہت پچھلے عرصے سے، کچھ اسلامک ریاست بہت اچھا ایک وقت ہے کہ بہت ایک آئیڈیل وقت ہے کہ وہ اسلامک ریاست کی جنہوں نے تمام لوگوں نے نعرے لگائے وہ آج نکلے جب شریعت کورٹ نے ایک لا پاس کیا، ایک باقاعدہ ججمنٹ دی کہ بھائی سود کے نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ کچھ بینکس نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پٹیشن ڈال دی۔ اب کسی کی ہمارا اسٹیٹ بینک نے اس کے خلاف، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پرائیویٹ بینک بھی ہے نا، پرائیویٹ بینک تو ہیں جو، لیکن جو ہمارے ملک کا نظام ہی جس کے نیشنل بینک نے بھی کیا ہے میرے خیال سے، نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی کیا ہے، اور نیشنل بینک تو حکومت کی اس کے خلاف جا بھی نہیں سکتا، یا تو اس میں اسٹیٹ بینک بھی نہیں جا سکتا حکومت کے خلاف۔ تو اب جو ہے اب مطلب میں نے نہیں کسی وہ جو اب اپوزیشن ہے جس نے باقاعدہ اسلامی تحریک نکالی اور بینک تو ویسے بھی سود پر ہی چلتا ہے۔ نہیں اب تو وقت آیا ہے، کوئی بھی بینک دیکھ لو چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، وہ مسئلہ ہے۔ لیکن ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے نا، ہم ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں نا سود کی، لیکن اب اس وقت ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم آواز اٹھائیں۔ ہماری اکانومی ہو سکتا ہے تھوڑی سی بیٹھ جائے، ویسے ہماری کوئی اچھی اکانومی نہیں ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو واپس اسٹیبلش کر لیں گے۔ افغانستان ہمارے سامنے اتنی بڑی ایگزامپل ہے، اتنی بڑی ایگزامپل ہے یار۔ ہم لوگوں کو اب 100 بات ہوتی ہے کہ ہمیں شاید میڈیا پہ اس طرح سے دکھایا نہیں جاتا، افغانستان میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے اور بہت ٹھپ ہو گیا سب چیزیں، لیکن اگر جو نیوز ہمیں مل رہی ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ دنیا نے اس پہ سینکشنز لگائی، دنیا نے تو اس کو اکیلا چھوڑ دیا، وہ اسلامک نظام پہ چل رہا ہے اور وہ پھل پھول بھی رہا ہے، پھل پھول بھی رہا ہے۔ ان کا بلیو ہے، جس بولتا ہے جسٹ بلیو ان اللہ، ان کا اللہ کو یقین ہے، وہ بولتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو کرنے والی ذات اوپر کی ہے، جب تک وہ ہے وقت تک سب ہے۔ اصل میں سعد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے جو حکمران ایسے ہیں نا، وہ ان چیزوں میں کرپشن میں ملوث نہیں ہے۔ وہاں کے حکمران اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ خود لوگوں کے سامنے نکلے ہوتے ہیں، مرنا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب ویسے تو ہم کبھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ یار ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یار تو اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ صرف اس سے نہیں ہوگا، آپ جس چیز کے مالک ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، ہر چیز کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا، اور بروز قیامت آپ کا ہر اعضاء آپ کے بارے میں آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا یا آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو برحق ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگ پیسے میں اتنے ملوث ہیں، مطلب دولت شہرت اس چیزوں میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ صرف بولتے ہیں کہ یار بس یہی دنیا ہے، اسی میں جینا ہے، جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، آخر میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یار یہ وہ ایک اور بڑی ہمارے یہاں کامن لائن بولی جاتی ہے کہ یار اس ٹائم کی دیکھی جائے گی، بعد میں ادھر دیکھی جائے گی، صحیح ہے۔ مطلب ایک ایسی رینڈم سی تھاٹ تھی میرے دماغ میں کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں نا، اگر اس وقت کی ہمیں دکھائی گئی نا اس وقت، تو یقین کریں کچھ بھی دیکھا نہیں جائے گا، صحیح۔ کیونکہ وہ ایک اور شاید کسی خطیب کی تھی کہ لائن تھی کہ مطلب شاید وہ بندہ برباد ہو گیا جس سے اللہ نے سوال کر لیا، بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا نا بالکل بھائی، آپ کیا کیا ہے۔ آپ ایک ہفتہ کراچی میں گرمی پڑی، آپ لوگوں کتنے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، وہ صرف گرمی برداشت نہیں، حالانکہ سورج ہم سے کتنا دور ہے، اور ہم مزے کے بعد اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں،
पूरा पूरा दिन एसी में बैठे होते हैं, फिर भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती भाई। बिल्कुल, लेकिन क़यामत के रोज़ वो सूरज मुंह पे खड़ा होगा सवा वहाँ नेज़े पे। पर। आप लोगों ने इकॉनमी की बात की ना कि अगर हम कुछ दिन अपना रुपया निकाल लें तो इकॉनमी शायद घट जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने और हदीस के ज़रिए से जो हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है और सूद को घटाता है। तो अगर इसी पर हमारा ईमान आ जाए कि सूद को घटाता है, तो सूद अगर हम लोग ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला से एक जंग है, सरी खुली जंग है, अगर हम अल्लाह ताला से जंग ख़त्म कर दें अपनी, तो क्या हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ कि बज़ाहिर हमें एक डाउनफॉल नज़र आएगा, लेकिन हमें वही शॉर्ट टर्म में वो हमें बज़ाहिर सिर्फ नज़र आ रहा होगा, जबकि वो शॉर्ट टर्म भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जो एक बात कह दी, सूद हमने ख़त्म कर दिया, अल्लाह ताला से जंग ख़त्म कर दिया भाई। अल्लाह ताला से जंग का तो हम कभी अपने तसव्वुरात में भी नहीं सोच मैं सकते। आपको एक और चीज़ बताता हूँ ना, हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड पर जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है कि अगर आपने जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी वो किस्त पूरी नहीं दी तो आपके उस पर एक अमाउंट का जो है वो लगता है। सही है। अब बहुत सारे लोगों की थॉट्स कि यार हम तो टाइम पे दे देते हैं तो हमारे ऊपर तो सूद नहीं लगता, मतलब हम तो उसको जितना जितना लेते हैं हम उतना ही दे देते हैं विद इन टाइम। भाई इंसान है, 100 इमरजेंसीज आ सकती है, आपने उस जो कह रहे कि उनका एग्रीमेंट है वो तो साइन किया है ना, मतलब आपने जंग की पूरी तैयारी रखी है। अब आपको जंग का मौका नहीं मिला तो आप बोल रहे हैं कि मैंने तो सूद नहीं लिया, मैं तो सूद नहीं लिया, मतलब आपने साइन कर दिया कि मेरी जंग है। जंग सही के कपड़े पहन लिए और मैदान में घूमना हाँ, खेलेगा। सही है। तो कि मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। हालांकि इसी तरह के जो प्लेयर, अभी आप जो थोड़ी देर पहले बात हुई, प्ले स्टोर पे जो ऐप्स वगैरह भी बनी हुई हैं, बिल्कुल ऐसी कुछ लोग ऐप्स हैं, बिल्कुल इतनी सहूलत, लोग कितनी आसान लोग ऐसे एक स्कैम है जो लोगों के सामने आना चाहिए कि जो लोगों को पैसों का झांसा देकर हमारे मिडिल क्लास है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, शऊर नहीं है, तो वो देखते हैं कि भाई इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं, 20,000 या 25,000 लोगों को बहुत मिले, वाकई में बहुत मिले, तो वो लोग अब उस चीज़ को हासिल तो कर लेते हैं। अब उनमें भी मेरे ख्याल से किसी ने बताया कि वो कोई 2-3 हज़ार रुपये की अमाउंट मिलती है, तो उस अमाउंट के बाद जब वो वापसी लेने पर आते हैं तो वो डे बाय डे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाते हैं। अब क्या है, आप जब पैसे दे रहे हो तो आप नहीं बता रहे, ठीक है, उस बंदे ने ले लिए, उसको शायद कि नहीं इंटरेस्ट कोई नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, वो शायद वो खुद भी बचना चाह रहा था लेकिन उसको नहीं इल्म नहीं था, लाइल्मी के उसमें लोगों को वैसे भी नहीं पता, सही लाइल्मी में उसने ले लिए। अब जब वो वापस मांग रहे हैं तो वो उससे डबल मांग रहे हैं, क्यों भाई, उसके ये टर्म एंड कंडीशन है। और मोस्टली अगर हम बैंक में भी चले जाए, कोई इतना लंबा टर्म एंड कंडीशन का पेपर होता है, कोई नहीं पढ़ता, नीचे हैंड में साइन कर देते हैं, खत्म की बात, ठीक है। अब वो इसी तरह से वो तमाम एप्लीकेशंस हैं कि आप इतने पैसे लें और उसको इतने दिन, अब मैं फेसबुक पे भी देख रहा था, इसकी फेसबुक के जरिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है ऐसी ऐप्स की, तो वो अब इतने दिनों बाद आप दें, मतलब आपने इतनी अमाउंट लिया तो आप 180 दिन बाद दें, इतनी अमाउंट लिया तो आप 1 साल बाद रिटर्न कर सकते हैं किस्तों में, जिस तरह से भी आप। अब क्या है, वो जब उस पर इंटरेस्ट लगता है तो वो बंदा परेशान हो जाता है। अब जब पर्टिकुलरली तमाम उन बैंक के खिलाफ जिन्होंने वो पटिशन दायर की है, सब चीज़ें उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही, तो ऐसी एप्लीकेशन को भी एड्रेस करना चाहिए कि अगर प्रॉपर्ली इस चीज़ को ख़त्म करना है तो फिर तमाम तरीके से तमाम उन कह लें कि जो ज़राए हैं उनको बंद करना चाहिए जहाँ से ये चीज़ें। असल वक्त अब आया है कि हम अब खड़े हों इस्लाम की खातिर। सिर्फ फेसबुक पे हमने बातें करना, कीबोर्ड वॉरियर बनना या मोटर माउथ बन के सिर्फ बातें करने से तो अब कुछ नहीं होता ना। जब हम कहते थे कि हम आशिक रसूल हैं, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस्लाम के नाम पर आज तक हुकूमत करती आई हैं, इस्लाम को यूज़ करती आई हैं, या मज़हब कार्ड जिसकी हमने अभी पिछली वीडियोज़ में बात की, मज़हब कार्ड को जो यूज़ करते आए हैं या अभी कर रहे हैं फ़िलहाल इस्लाम के नाम को, तो अब उन्हें असल में आवाम को गैदर करना चाहिए। बाकी आवाम तो हमने देखी है भाई, मुख्तलिफ जलसों पर गैदर हुई भी होती है, लॉन्ग मार्चेस, कितने बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस देखें, पूरे शहरों से लॉन्ग मार्चेस निकल के जा रहे होते हैं। तो अगर आज पाकिस्तानी निकले, आज एक कॉल दी जाए कि अपने बैंक्स, उन बैंक से पैसे विथड्रॉ करा, बिल्कुल, कैसे वो फैसला वापस नहीं लेंगे, कैसे वो अपने पिटीशन को वापस नहीं लेंगे जब उनको इतना लॉस हो जाएगा बैंक्स में, कैसे नहीं वो वापस करेंगे? मसला सारा ये है कि हम जो है वो एक्शन के कुछ और है, वर्ड्स के कुछ और है, सीधी सी बात है। उसके अलावा हमारे अंदर जो एक और अगर मैं एज ए यूथ अपनी बात करूँ या कुछ, हमारे यहाँ एक हार्ड वर्किंग का और स्मार्ट वर्किंग का भी काम बहुत कम हो गया। हम मेहनत नहीं करते, हमारा ये है कि हमें
मिला जो है ना वो बना बनाया नवाला मिल जाए, शॉर्टकट्स देखना चाहते हैं। सोने का नवाला मिल जाए हमें और हम कुछ ना कुछ बन जाए। मतलब आजकल अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं बैचलर्स के बाद अब जॉब का मुझे है कि हाँ यार कुछ करना है तो ये, लेकिन ये कि अब मेहनत जो है ना वो हमारी उसमें से ख़त्म होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। और फ्रस्ट्रेशन ऐसे नहीं आती, जब आप बैठे होते हो ना तो ही फ्रस्ट्रेशन होती है आपको। देखिए मौज़म में बना बनाया तो किसी को भी कुछ किसी नहीं को भी आप कुछ देख लें वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तकालीफ कुर्बानियों के बाद इस्लाम को आगे पहुँचाया। चाहते तो अल्लाह ताला से एक दुआ करते पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने ही लोगों से बाइकआउट किया, अपने ही लोगों से बाइकआउट कर मतलब लोगों ने उनसे अपने लोगों ने उनसे बाइकआउट किया, उनको घाटी में कैद रखा, कितने उन पे हमले किए गए, नाउज़ुबिल्लाह, उनके दंदान मुबारक शहीद हो गए, उनका लहू गिरने लगा ज़मीन पर। मतलब आप ये सोचें कि अगर हार्ड वर्किंग ना करनी होती, अल्लाह ताला को शॉर्टकट से देना होता तो वो अपने महबूब को देते, अपने महबूब के बाद अबू बकर को देते जो अफज़लुल बशर बादल अंबिया है, उमर को देते जिनकी वजह जिनसे शैतान भी डरता है, उस्मान गनी को देते, अली मुर्तज़ा को देते, वो शॉर्टकट्स मिलते, लेकिन उन सब ने स्ट्रगल किए। देखिए एक बंदे ने स्ट्रगल करके आगे बढ़ा। यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, वो शहीद हुए। और आज हम देखें, अगर अपने ही देख लें, हम अपनी बादशाहत देख लें, जो हमारे मुल्क के अंदर बादशाहत चल रही है, ख़ानदान दर ख़ानदान मुंतकिल हो रही है, बच्चे बैठकर पल रहे हैं, उनके अब अगले बच्चे जो आएंगे वो बन जाएंगे अगले सियासतदान। हमें ये कहा जाता है कि हमें जो है जो इस्लामिक जो निज़ाम है वो नहीं चाहिए कि उसके अंदर जो है इसी तरीके से नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, एक अमीरुल मोमिनीन बन जाता है हमारा। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि सालों से हमारे पे लोग मुसल्लत किए हुए हैं, उन्हीं की फैमिली हमारे पे चलती चलती चली जाती है। हज़रत उमर की मिसाल है, हज़रत उमर के जब उनको शहीद किया गया, जब खलीफा चुनने का वक्त आया तो किसी ने सोचा भी, उमर ने 6 नाम दिए कि ये 6 नाम है, अल्लाह के नबी से राज़ी थे, इनमें से जिसको चाहो सेलेक्ट करो। किसी ने शोशा छोड़ दिया, वहाँ पे लोग होते हैं कि आपका बेटा भी तो है, खिलाफत क्या है, उन्होंने कहा कि इसको तो तलाक देना भी नहीं आती है, क्या खिलाफत है। अभी आपने बात की ना कि जो है अंबिया वगैरह की मेहनत और उन पे जो हार्ड मतलब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को तमाम फिर उनके बाद जो सहाबा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी जो थे उन पे इतनी मुशक्क़तें और इतनी, और इसके अलावा उन्होंने शिकायतें भी तो नहीं की ना। हमारी कौम में एक और भी बहुत बड़ा जो मसला है वो ये है कि हम लोग हर बात पे शिकायतें, रोना हर चीज पे रोना है। देखिए अभी मैं खुशी उस पे भी रोना है। मैं बस में आ रहा था, शुक्रिया बस में आ रहा था तो आप दो अंकल बहुत उन्होंने बड़ी कोई अच्छी डिस्कशन की थी, बहुत लंबी डिस्कशन थी, इसमें मैं आपको कुछ ला रहा हूँ। उन्होंने बोल रहे हैं कि बस अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो इससे बसें चल रही है, ये जाएगी तो बसें भी जाएंगी। मतलब भाई यार आपको एक चीज़ मिली है, आप उस पर शुक्र तो अदा करो, शुक्र अदा करना भूल चुके हैं। हर चीज़ पे शिकायत है, और जब शिकायत की जाती है तो आपसे नेमत छीन ली जाती है, ठीक है। इन शुक्र तुम तो शुक्र अदा करो और मज़ीद बढ़ेगा। मिलेगा। तो अब देखें ना, ये अगर इस सोल्यूशन को भी हम समराइज करने की कोशिश करें ना, तो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आपके अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आपने जाके आगे चीज़ें संभालनी है, आपने आगे जाके भाग दौड़ संभालनी है, ठीक है। आज हम ये रोना रो रहे हैं कि वो हुक्मरान ठीक नहीं है, वो हुक्मरान ठीक नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को देखें कि हम एज ए यूथ, मैं यूथ की बात करूँगा क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान में यूथ की है। अब अगर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं, उनसे मैं बात करके क्या करूँ? बड़ी उम्र के लोगों ने वैसे ही आगे निकल जाना है, यूथ है जिसने आगे जाके अपनी कमान संभालनी है। अदील भाई ने जैसे बात की थी कि आज का बच्चा जो अच्छा होगा तो कल का सियासतदान अच्छा होगा, कल का पुलिसमैन अच्छा होगा, कल का फौजी अच्छा होगा। हमने आज अपने सियासतदान, टिकटॉकर्स और बाकी लोगों को, अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपना जो है वो रोल मॉडल बनाया हुआ है। एक्सपेक्ट हम करते हैं कैसे लोग पैदा हों? खालिद बिन वलीद का। अभी तो हमारे जितने बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े ओहदों पर हैं, वो भी रीच हासिल करने के लिए या लोगों के दरमियान जाने के लिए या अपनी जो है प्रमोशन करवाने के लिए वो भी इन्हीं चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। टिकटॉकर्स का सहारा ले रहे हैं, कोई ड्रामा का सहारा ले रहे हैं, कोई फिल्म एक्टर्स का सहारा ले रहे हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारी असम्बलियों से भी इन चीज़ों के लिए बजट पास होता है। चलिए ठीक है, अब रोल मॉडल एक होना चाहिए बनने का, लेकिन अब वो रोल, अब जैसा मैं अगर किसी को ये कहूँ कि यार हमारा एक लीडर, मतलब एक टिकटॉकर ग्रुप से मिलने गया था, और वो टिकटॉकर जिनको मतलब घर में कोई नहीं पूछता,
जिनके दोस्त हैं उनको कोई नहीं पूछता, मतलब नहीं अच्छे लगते भाई वो, मतलब बेहयाई उन्होंने इतनी उरूज पे फैलाई हुई होती। बात वही है, मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कि जिस कौम में गाने बजाने वालों और नाच गाने वालों को फौकियत दी जाए ना, उस कौम से खालिद बिन वलीद और उमर बिन खत्ताब जैसे लोग पैदा नहीं होते। बिल्कुल सारी बातें ये, जब तक हम अपने रोल मॉडल, जो हमने सबसे पहले हमने बात की थी कि क्या होना चाहिए असल में, हो क्या रहा है और रोल मॉडल्स के क्या होने चाहिए, हम तभी ये बात की थी कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो हमारी वो इस्लामिक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए जिन्होंने दुनिया को वाकई कॉन्कर किया है, जिन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, ऐसे लोहा मनवाया है कि जो अपोजिशन में लोग हुआ करते थे वो उनके गुण गाया करते थे, वो उनको दाद दिया करते थे, वो इवन नॉन मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे वो उनको दाद दिया करते थे, उनके सामने आने से डरा करते थे। हमें उन लोगों को आइडियलाइज करना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट्स में वो बातें सारी बतानी चाहिए, हमें हमारे मुल्क में इस वक्त जो है जो वाकई ज़रूरत है इस्लाम के नाम को, इस्लाम के झंडे को उठाने की, इस्लाम के नाम को बुलंद करने की, वो हमें अब आगे अपनी स्पिरिट को दिखाना चाहिए कि हम वाकई सूदी निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं सूदी निज़ाम के खिलाफ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे उन्हीं बैंक्स के अंदर लाखों रुपए पड़े हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी की बात हम ये भी सुन रहे थे कि वो बात तो कर रहे हैं कि सूदी निज़ाम खत्म होना चाहिए, लेकिन नीचे वही उन्हीं में से एक बैंक का हवाला दिया हुआ था कि आपने अगर कोई डोनेशन देनी है तो इसी बैंक को ला दे। मतलब कि हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे एक्शंस हमारे वर्ड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे वर्ड्स हमारे एक्शंस को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने गली का कचरा भी साफ करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हुक्मरान हमारे पूरे मुल्क का गंद साफ करे। कैसे करेगा हुक्मरान है वो भी कोई अल्लाह ताला ने कोई एलियन तो वैसे नहीं भेजा हुआ ना कि एलियन आके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, वो भी हमारी तरह एक इंसान है, अल्लाह ताला की तरफ से चूज किया गया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं एज एन इंडिविजुअल, मौज़म जहांगीर एज एन इंडिविजुअल कहाँ स्टैंड करूँ? क्या मैं वाकई अपने, मैं कहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखूँ, मुझे जो कुर्सी मिली हुई है, मुझे जो प्रोजेक्टर मिला हुआ है, मुझे जो मल्टीमीडिया मिला हुआ है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। मैं अगर CR हूँ क्लास का तो मैं 1000 रुपये अपनी जेब में तो नहीं डाल रहा, बाकी 1500 रुपये लगा रहा हूँ आगे। मतलब इन्हीं चीज़ों से डाउन लेवल से करप्शन हमेशा स्टार्ट होती है। मैं अपने हाई लेवल की करप्शन नहीं देखूंगा, मैं ये बोलूँ कि यार वो लोग वो बड़ी करप्शन कर रहे हैं तो मैं छोटी करूँ। मेरी भी पकड़ उतनी है, झूठ छोटा हो या बड़ा हो, जैसे झूठ झूठ होता है इसी तरीके से कोई भी बुराई हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हमेशा बुरा। अगर इस बात को, अगर इस पूरे सोल्यूशन को अब हम एंड करें तो यही है, सबसे ज़्यादा पहले मेरे ख्याल से अपना आप का मुहासबा, ठीक है, हम अपने आप को ठीक कर लें, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सही, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और हम शिकायत करना कम करें, शुक्र अदा करना ज़्यादा करें। शुक्र अदा करना, शुक्र, ठीक है, मुश्किल वक्त भी कौमों पे आता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त अंबिया पे ही आया है, क्या उन्होंने सब्र और शुक्र से काम नहीं किया? हमसे 2 गुना ज़्यादा मुश्किल वक्त उनके ऊपर आया, क्योंकि वो पूरी कौम का दुख लेके अपने ऊपर चल रहे हो। तो हमें एज ए यूथ यही काम, और यूथ में अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो सब्र का बिल्कुल जीरो लेवल है। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई ये जो पाकिस्तानी इंडियन वगैरह ये बहुत एग्रेसिव कौम है, ये मतलब एक मकूला मशहूर है, मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ। एशियंस अब एक बच्चे अगर मेरे साथ, मेरे बाजे भतीजे घूम गए, जब वो देखेंगे यार कि ये चाचू मामू जो हमारे हैं इसमें सब्र नहीं है, तो बड़े होकर उन्होंने भी ऐसा ही बनना है। फिर जब वो बड़े होंगे तो उनकी बात क्या हुई कि बात आपको अपने आप को सही करना है। भाई देखें, बात सारी जो आपने की कि पाकिस्तानी और इंडियन वगैरह क्यों है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ही देखें ना, छोटी छोटी 1000 प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं। मैं बस के अंदर जा रहा हूँ ना, जैसे हम तो जैसे यूनिवर्सिटी वाले, आप लोग भी जो 8 साल आप लोगों ने लगाए बसों में अगर गुजरे हैं, तो वहाँ पे लोगों की 100 प्रॉब्लम्स हमारे कानों में पड़ रही है। एक कंडक्टर से मैं अलग लड़ रहा हूँ, 2 रुपए के लिए कोई बंदा अलग लड़ रहा है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे जहन वैसे ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं, इसी वजह से हम ना बहुत ज़्यादा अग्रेशन की तरफ निकल जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा वक्त आता है कि हम मार धाड़ की तरफ भी निकल जाते हैं, बस हाथ पाए तक गिरबान हमारे हाथ में होता है। अक्सर ऐसा होता है, कोई हल्की सी किसी की बाइक लग जाए, कोई गाड़ी लग जाए, मतलब 50, 60, 100, हद से ज़्यादा 200, 300 की राइड होगी और पड़ जाते हैं एक दूसरे पे, कूद जाते हैं कि भाई तूने मतलब ठोकी, अबे भाई इंसान है, होगी गलती, नहीं तूने ठोकी तो ठोकी कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का इस तरह। अगर इसको क्लोज करना चाहे तो इसी बात पे मैं इन तमाम चीज़ों को समराइज करूँगा कि सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप से शुरू करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बाकी तमाम चीज़ों को आपके अराउंड जो भी सारी चीज़ें वो खुद ही सही होती रहेंगी। जैसे हमने ये बात शुरू की थी, हम भी तो एक अग्रेशन के अंदर आ गए थे, हम भी एक ज़रा अलग वे की तरफ बात को लेके जा रहे थे, लेकिन हमने आराम से बैठ के फिर वो बात की।
بات شروع ہم نے وہی بات ہے، ہم نے بات شروع کی تھی 180 روپے لیٹر تھا پیٹرول، ابھی ہمارے پاس 248 روپے پیٹرول پہنچ چکا ہے تقریباً. تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ ہمیں ایز این انڈیویژول ہمیں اسلام کا پرچم اپنی ڈومین میں رہ کے بلند کرنا چاہیے. میں اسلام کا بول بالا اپنی ذات کے لیے کر لوں اور اپنے دوستوں تک اس بات کو پہنچاؤں. اپنے دوستوں تک یا آپ کے انڈرز یا آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی بتانا. باقی دعا یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. جس بیسس پہ پاکستان بنا ہے ہم ایکچوئل لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے جو اسلامیت کے سر تھے، کہنی تو یہ بات نہیں چاہیے لیکن وہ کہتے تھے کہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن حکمرانوں نے بنا دیا لا الہ اللہ. ٹھیک ہے، خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ